श्री वाहिगुरु साहिब जी। इक मन पुरख ध्याए बर दाता, संत सहार सदा विख्याता। तास चरण ले हृदय बसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर, दुर्त निवारण शब्द सरे। गावह गंभीर धीर मत सागर, योगी जंगम ध्यान तरे। गावह इंद्राद भगत प्रहलादक, आत्म रस जिन जानियो। कब कल सुजस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन माणियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुध डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला तीजा, गुरमुख होवै सो सुख कमाए। मरण जीवन की सोजी पाए। गुरमुख होवै सो सुख कमाए। मरण जीवन की सोजी पाए। मरण जीवन जो सम कर जानै, सो मेरे प्रभ भाएंदा। गुरमुख मरहै सो है परवान, आवण जाना शब्द पछाण। मरै न जम्मै ना दुख पाए, मन ही मन है समाएंदा। सेवड भागी जिनि सतगुर पाया,
ਹਉਮੈ ਵਿਚੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਏਂਦਾ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਸਚ ਸੁਣ ਲਿਖੈ ਪਾਏਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਚੋ ਸਚ ਕਮਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨ ਲਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਚੋ ਸਚ ਕਮਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨ ਲਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰੂ ਸੋਲ੍ਹੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ 1059 ਅੰਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 11 ਬੰਦਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ 16 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 16 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੋ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 12ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੁਖ ਕਮਾਏ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੁਖ ਕਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਖ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ। ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਅਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਣੀ। ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖੇੜਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਏ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਰੋਗ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਰਾਧਾਂਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਰਾਧਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
तन मन काट काट सब अर्पी बिच अग्नि आप जलाई। अपना तन मन कट के टुकड़े टुकड़े करके अपने आप नूं अग विच साड़ लियांगा। बेशक अग विच सड़ जावां, मैं सड़ के राख बन जावां, पर जिन्ना चिर शरीर विच साह ने ते उन्ना चिर परमात्मा तेरी आराधना मैं करदा रहांगा। ये है गुरमुखां दा जीवन। गुरमुख जन कदे उस मालक नूं विसारदे नहीं, भुलाउंदे नहीं हन। ते सतगुरु महाराज कहंदे जदों सुख आ गया तो सुख वेले कहते गुरमुख सुख कमाउंदे ने। ये दुनियावी सुख नहीं कमाउंदे, वो कमाउंदे ने आत्मक सुख, आत्मक तौर पर सुखी होना। आम तौर पर आपां देखदे हां संसार विच विचरदियां होइआं आपां कहंदे सुखी मनुख कौन है। संसारी सोच मुताबक आपां कहंदे हां कि जिहदे घर विच 4 पैसे ने, नौकर चाकर ने, जिन्हों सारियां सहूलतां प्राप्त होईयां ने, ते आपां कहंदे कि फलाना मनुख सुखी है। ते सतगुरु महाराज कहंदे नहीं, बाहरों देखण नूं कुछ होर हुंदा ते अंदरों कुछ होर हुंदा है। अंदर प्रवेश करके देखना करो कि बाकी सुखी है कि नहीं सुखी है। बाबा फरीद जी वचन करते हैं, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाया जग, ऊचे चढ़ के देखिया तां घर कर एहा अग। सारा संसार दुखी है, किहदी गल करिए। हर एक मनुख नूं दुख चिमड़िया होया। ते इत्थे हुण सतगुरु महाराज कह रहे ने कि जिहड़े गुरमुख जन हन वो सुख कमाउंदे ने, वो दुनियावी सुख की लालसा नहीं रखते, वो परमार्थी सुख की लालसा रखते हैं। आत्मक तौर पर सुख विच रहना, आत्मक सुखी होना। देखो जिमें प्यो ते पुत्र शहबाज सिंह ते सुबेग सिंह, पर प्यो पुत्र ने ना, ते जिन्हों जिउंदियां नूं चरखड़ियां उत्ते चाढ़िया जा रहा, चरखड़ियां घुम रहीआं हन, दोनों प्यो पुत्र ने, पर मुखों गुरु सवारिओ उस परमात्मा की आराधना करते, गुरु गुरु जपते, वाहिगुरु वाहिगुरु आखते ने, हड्डियां दा चूरा चूरा हो गया टुट के। जिन्नियां साडियां 206 हड्डियां मनियां गईयां शरीर दे विच, जिहड़ियां साडियां हड्डियां ने ना, ये हड्डियां दा चूरा चूरा हो गया। पर दोनों प्यो पुत्र ने गुरु सवारे, गुरु की आराधना नहीं छड्डी। शरीर दे टुकड़े टुकड़े करवा ले, चरखड़ियां नाल तूंबे तूंबे हो गए, पर उन्हां दा सुख जिहड़ा सी उस सुख नूं ये लोग गुरु सिर भंग नहीं कर सके, क्योंकि वो शरीरक सुख नूं सुख नहीं समझते। शरीर हूँ पर शरीर नूं दुख अज नहीं तो कल आना ही है, शरीर ने एक दिन संसार तो जाना ही है। वो आत्मक सुख नूं सुख मानते ने, जिहड़े आत्मक तौर पर सुखी, जिन्हां नूं नाम दा रंग लग जाता ना, फिर वो आत्मक तौर पर सुखी हुंदे ने। वो सुख गुरमुख जन गुरमुख होवै सो सुख कमावै, कहंदे इस तरह वो सुख नूं कमाउंदे हन। ते पातशाह जी कहंदे मरण जीवन की सोझी पाए। वो फिर जम्मण मरण दी, मरना ते जीउणा इहदी सोझी प्राप्त कर लैंदा है। वो किहड़ा जम्मण मरना, हुण एक तां मनुख जन्म लिया, जे जन्म लैके उन्हें मरना जरूर है, ये टल सच्चाई है। शरीर लैके संसार च आए हैं, शरीर ने एक दिन खत्म होना है, ये टल सच्चाई है। फिर सोझी किहड़ी प्राप्त करते हैं गुरमुख जन। असल विच गुरु सवारिओ परमात्मा का नाम जप के, गुरु गुरु जप के, उन्हां गुरमुखां नूं ये सोझी आउंदी है, ज्ञान पैदा हो जाता उन्हां गुरमुखां दे अंदर। उन्हां नूं पता लग जाता कि आत्मक मौत किहड़ी मौत है। ते इसे तरह ही
आत्मक तौर रूहानीयत जिहड़ा आत्मक तौर दा जिहड़ा जीना है वो किहड़ा जीना है। एक तां हुंदा जिस्मानी मौत, जिन्नी सानू सरीरक आजू प्राप्त होई आपां वो आजू भोगी ते संसार तो कूच करके आपां कहंदे फलाणे दी मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, फलानी बीमारी नाल उहदी मौत हुई है, ये जिस्मानी मौत हो गई। एक हुंदा आत्मक तौर ते मरना। जिस्मानी मौत एक बारी आउंदी है ते आके खत्म हो जाती है, पर जिहड़ी आत्म मौत हुंदी ना वो निता प्रति पल पल जीव मरदा रहिंदा है। हर समय उहदी मौत हुंदी है, जीव दी भटकना विच रहिंदा है, हर समय मन डर खौफ बनिया रहिंदा है। ते सतगुरु महाराज कहते ये उस गुरमुख जना नूं पता लग जाता है कि मरना की है। जिन्हें अपना जमीर मार लिया वो मरिया हो ही एक तरह का, जिहदा जमीर जाग गया तो असल विच वो आत्मक तौर पर जी रहा। जिहड़ा जमीर नूं मार के गुरु सवारिओ गलत काम करदा, धर्म दे उल्ट कर्म करदा है, तो होर वो हर समय पल पल आत्म मोते मरदा रहिंदा। उहदी मौत बार बार हुंदी है, बार बार वो मरदा है। तो फिर जीवना, जीवन की सोझी पाए। जीवन की सोझी किवें? उन्होंने पता कि रूहानीयत जीवन किहड़ा है। शरीर मुक जांदा पर आत्मक तौर पर गुरु सरे फिर भी वो जींदे रहिंदे ने, अमर हो जाते वो गुरमुख जन। रहिंदी दुनिया तक उन्हां गुरमुखां नूं संसार दे लोग याद करते हैं। ये सोझी वो गुरमुख जीव जन प्राप्त कर लेंदे हन। मरण जीवन जो सम कर जाणै, सो मेरे प्रभ भाएंदा। मरण जीवन, जन्म लैके संसार विच आए, मर के चले गए। जिहड़ा इस नूं सम करके जानदा, बराबर जानदा, भाव संसार जन्म ले लिया फिर मर के चले गए, जन्म लिया कोई फर्क नहीं, मर के चले कोई फर्क नहीं। एक सां बिरती रखण वाले जिहड़े एक सां बिरती रखते ने, कहते इहो जे सो मेरे प्रभ भाएंदा। इहो जे गुरमुख जन मेरे प्रभु परमात्मा नूं भाएंदा चंगे लगते हैं, प्रभु नूं प्यारे लगते हैं। जे आपां इतिहास की गल करिए, आनंदपुर साहिब की धरती ते गुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज ने अनेकां प्रकार दीयां खेडां खेडना कीतियां। बहुत सारे सतगुरां दे इहो जे सिंह सी जिहड़े बड़े जुझारू सी, जिन्हां उत्ते गुरु की अपार बख्शिश रहमत सी। ये नहीं कहले शास्त्र विद्या के धनी सन। जे शास्त्र करके वो सूरमे सी, शास्त्र चलाण करके बड़े बलवान सूरमे योधे सी, ते नाल उन्हां नूं नाम दा रंग भी लग्या होया सी, बाणी दा पहरा सी। गुरबाणी विच पातशाह दे बचन पढ़दे आ, सूरमा किहनूं आख्या जांदा, ते पातशाह कहंदे ने जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिणै सगल वस तांकै, जाका सतगुर पूरा। जिहदे सतगुरु पूरे, जिन्होंने नाम दा रंग लग गया ते गुरु सवारे असल विच वो सूरमा है। ते सार जिन्ने भी सिंह आनंदपुर साहिब की धरती ते गुरु कलगियां वाले पातशाह दे कोल रह रहे सी, वो सूरमे सी। आनंदपुर साहिब दे विच ही एक बाग है जिन्हों शहीदी बाग आख्या जाता। बाग है गुरु का बाग सी, नाम है गुरु का बाग, पर नाम पै गया शहीदी बाग। शहीदी बाग नाम क्यों पिया? क्योंकि गुरु पातशाह का एक सिख सी जिहदा नाम सी केसर सिंह।
ये केसर सिंह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का माली सी बाग का। माता जीत कौर जी, भाई केसर सिंह जी उस बाग नूं संभालते सन। अनेकां प्रकार के फल, अनेकां प्रकार के फुल उस बाग विच हुंदे सी। ते शहीदी बाग नाम तां पिया कि जदों आनंदपुर साहिब विखे बहुत सारे जंग युद्ध होए, जंग युद्ध होए, एक दूजे नूं गुरु के सूरमे सिख इस जूझते हुए शहादत का जाम पींदे सन। बहुत सारे सिंह आनंदपुर साहिब की धरती ते शहीद होए। जिहड़े सिंह शहीद हो जाते सन उन्हां दियां फिर लोथां नूं, उन्हां दे शरीरां नूं चुक के जिथे गुरु का बाग है, गुरु के बाग दे विच उन्हां दे पंच भूतक शरीर का संस्कार किया जाता सी। ते संस्कार करन करके अस्थान का नाम पै गया गुरु के बाग तो शहीदी बाग उस अस्थान का नाम पै गया। इहो जे चढ़दी कला वाले सिंह सी गुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज कोल, जिहड़े जीवन मरण नूं सम करके बराबर करके जानते सन ते सतगुर नूं बड़े वो चंगे लगते सन। गुरु की वो बख्शिश के पात्र बनते सी। उन्हां सिंघां विच एक सिंह सी जिहदा नाम है भाई आलम सिंह। गुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज सिंह भाई आलम सिंह ते उहदे नाम दे नाल एक शब्द लग्या है नचना। आलम सिंह नचना, क्योंकि शरीर विच बड़ी फरतीला सी, आलस नहीं शरीर उत्ते आने, बड़े योधे से बलवान सी। दुश्मन नाल मुकाबला करना ते दुश्मनां नूं लकारना ते गुरु सवारिओ बिल्कुल भी अपने शरीर विच जिहड़ा आलस नहीं आण दिंदे सन। चढ़दी कला विच रहना, बाणी पढ़ी जानी, सिमरन करना, गुरु गुरु जपना। जो गुरु साहबान जी हुक्म करते उन्होंने हुक्म नूं सत करके मनना, ये भाई आलम सिंह का जीवन सी। कहते ने इन्हां दे जीवन की एक बड़ी अनोखी घटना है। कहते आनंदपुर साहिब के इलाके दे विच भाई साहब जी विचर रहे ने कि विचरदियां होया की देखिया कि जंगल वाले पासे नूं गए, एक सामने शेर आ गया। हुण जो शेर नूं देखिया तो शेर नूं देख के सारे कंब गए कि शेर नाल हुण मुकाबला किहड़ा करे। हुण शेर नाल मुकाबला करन दे लई शस्त्र की लोड़ है। शस्त्र तो बिना शेर नाल मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो भाई साहब ने अनोखा कौतक बरताना किया। कहते भाई आलम सिंह ने देखिया कि सामने शेर आ गया। नाल दे सिंह कोल ने कहन लगे, आलम सिंह वो वेख सामने शेर। कहने कोई गल नहीं, जे शेर आ गया तां की हो गया, वो जंगली शेर है, असीं गुरु कलगीधर पातशाह दे शेर हाँ। अज जंगली शेर दे नाल गुरु कलगीधर पातशाह दे शेर का मुकाबला होवेगा। कहन लगे देखते हैं कि गुरु कलगियां वाले पातशाह का शेर जितदा जां जंगली शेर जितदा है। तो सिंह देखते सारा चुप दा सन्नाटा छा गया। कहते ने भाई आलम सिंह ने उस समय अपने शास्त्र उतारते, जिन्ने भी शास्त्र श्री बड्डी श्री साहब पहनी हुई सी जां गुरु तीरां दा पत्था सी, सारे उतार दिते। ते नाल दे सिंह देख के बड़े हैरान होए। कहन लगे भाई आलम सिंह जी आप जी की कर रहे हो? सामने शेर है, शेर नाल तुहाडा मुकाबला होना है ते तुसी अपने शास्त्र उतार रहे हो। ते भाई आलम सिंह ने बड़ा सुंदर उत्तर देना कीता सी। कहन लगे मेरे गुरु का हुक्म है, गुरु का हुक्म यह है कि किसी निहत्ते उत्ते वार नहीं करना।
शेर सामने आ रहा तो शेर कोल कोई शास्त्र नहीं है। जे मैं शेर उत्ते हुण कृपान चक के श्री साहब चक के हमला करा तो भाई साहब जी कहन लगे फिर गुरु के बचनों की उलंघना होवेगी। अज दो शेर आपस च लड़नगे, एक शेर है जंगली शेर, दूजा शेर है गुरु कलगीधर पातशाह का शेर सिंह। कहते ने देखो गुरु कलगीधर पातशाह कृपा करनगे ते गुरु कलगीधर पातशाह के शेर की जित होवेगी। कहते ने उस समय भाई आलम सिंह नचना जी ने ते गुरु सवारियो कहते शेर नूं ललकारिया। शेर उस समय भाई साहब उत्ते हमला किया। कहते कदे भाई साहब जी थले कदे शेर थले, सारे सिंह ये मुकाबला देख रहे ने। आनंदपुर साहब के लोग कत्तर हो गए ते लहू लहान भाई साहब जी हो गए। पर गुरु सवारियो अपने हत्थां दे नाल ही जंगली शेर नूं गुरु कलगीधर पातशाह दे शेर ने खत्म कर दिता। एडे बड़े बहादुर सूरमे, एक दी गल नहीं, पता नहीं किन्ने सी आनंदपुर साहब की धरती ते अपने हत्थां बिना शास्त्र तो शेर नूं मारना ये मनुख की गल नहीं है। ये वो रूहां हुंदियां ने जिन्हां उत्ते गुरु महाराज का बख्शिश हुंदी है, जिहदे उत्ते अकाल पुरख की कृपा हुंदी है। हुण ये गुरमुख इन्हां दे बाबत सतगुरु कहंदे ने मरण जीवन सो सम कर जाणै। मरना मौत होई कोई परवाह नहीं, जी रहे ने कोई परवाह नहीं, मालक दे रंग दे विच दोनों नूं सम करके बरोबर करके जाणदे हन। कहते जिहड़े इस तरह अपने जीवन नूं बतीत करते हैं तो गुरु पातशाह कहते सो मेरे प्रभु भाएं दा, वो मेरे प्रभु परमात्मा भाएं दा चंगा लगता है। गुरमुख मरह सो है परवान, आवण जाना शब्द पछाण। गुरमुख जन संसार में जन्म लैके आए, गुरु की सिक्ख्या अनुसार अपने जीवन को बतीत किया, फिर समा आया आजू भोग के गुरमुख जन अपने पंज भूतक शरीर को त्याग के चले गए। तो पातशाह कहते ने जो गुरमुख जन चढ़ाई करते ने उन्होंने मौत होंदी है, वो गुरमुख जन कहते मालक दे दर ते प्रवान हो जाते हैं। जे भाई गुरदास जी वचन करते ने गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया। तो गुरमुखां दे बावजूद यही गुरमुख जन दुनिया के लोगों ने इन्हां गुरमुखां नूं नाम देना कीता है। किसी ने संत आख्या, किसी ने भगत आख्या, किसी ने महापुरख आखना किया, इस संसार के लोगों नाम दिता है। तो सतगुरु महाराज कहते पुछया भगत कबीर साहिबा नूं पुछो, कबीर जी नूं सवाल कर लिया। कहन लगे जदों कोई मनुख चढ़ाई करदा, मनुख की मौत वेले फिर उहदे परिवार के मैंबर मित्र सज्जन रिश्तेदार रोंदे ने कुरलाउंदे हन। कहन लगे जदों संसारी जीव मरिया ते रोए कुरलाए पिट स्यापा होया। कहते जो गुरमुख जन कोई चढ़ाई करे, रब दे प्यारे संत जन चढ़ाई करे, संत जना की मौत होवे, भगत जी उदों भी रोना चाहिए, कुरलाना चाहिए। तो भगत कबीर साहिबान जी कहते रोईए उहदे लई जिहड़े अपने मंजिल तक ना पहुँच सके, उन्हां लई रोईदा है जिहड़े अपने घर ना पहुँच सके। जिहड़े अपने घर नहीं पहुँचते उन्हां लई रोईदा है, पर कहते जिहड़े अपने घर पहुँच जाण उन्हां लई की रोना, वो तो अपने परिवार जाके बैठ जाते हैं। कहन लगे भगत जी समझे नहीं, तुसीं विस्तार साहब समझावो, तुहाडा कहण दा भाव की है।
भगत जी ने फिर श्लोक उच्चारण किया, कहते ने कबीर संत मुए क्या रोईऐ, जो अपने गृह जाए, रोबो साकत बापरे, जो हाट हाट बिकाए। कहते साकत पुरुषां लई रोना करो। कहते सत जनता कहते अपने गृह चले गए। उन्हां दा गृह की है? सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। उन्हां गुरमुखां दा इहो जिहा जीवन है, अपने घर विच पहुँच जाते हैं जाके। इस करके सतगुरु महाराज इत्थे बचन करते हैं, कहते वो गुरमुख जन फिर उन्हां दा मरना भी प्रवान है। ताइयों भगत जी ने कह दिता ना, कहते कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरा मन आनंद, मरने ही ते पाईए पूर्ण परमानंद। कहते उस मरण दे परमानंद परमेश्वर नूं प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार गुरु सवारियो वो गुरमुख जन अपने जीवन नूं सफला कर लैंदे हन, उन्हां दा मरना प्रवान हो जाता है। वो शहादत दा जाम पींदे ने ते शहीद हो के सदीवी काली अमर हो जाते हैं। इस तरह वो प्रवान होंदे हन। आवण जाना शब्द पछाण। आवण संसार विच जन्म लैके आ गए ते आजू भोग के संसार तो कूच करके, ये सिलसिला है, ये दस्तूर है संसार का। चाहे मनुख है, पशु है, पंछी है, जिन्नियां भी जूना हैं, हर एक ने जो जन्म लैके आना मरना हर एक ने, पर मरण नूं किसी दा मन नहीं करता। संसार च जदों देखो किहो जी खेड़ है परमात्मा दी। जदों जीव संसार जन्म लैके आंदा उदों रोंदा आउंदा, जदों फिर कूच करदा संसार तो ते उदों भी फिर जीव रोंदा ते नाल अपने परिवार नूं भी रुआ दिंदा है। खेड़ ऐसी है, जन्म लैके संसार विच आया, परमात्मा ने मनुखा जन्म बख्शिया ते परमात्मा ने आखे कि नाम जपना कर, बंदगी कर, गिणती दे साह ने तेरे। माता मन विच ये मान करना कि मेरी इन्नी उम्र हो गई, इन्नी, पता नहीं कदों मुक जानी, समाप्त पता नहीं कदों हो जानी है। पर मनुख की आदत है, जदों मनुख संसार विच आउंदा ये गिणती करदा। गिणती काहदी करदा है? धन संपदा दी, कि अज मैं इन्ने पैसे कमा ले, अज इन्ने कमा ले, इन्ने जमा कर ले, इन्ना मेरा खर्च हो गया। सारी जिंदगी ही गिणती करदा है। ये माया की गिणती करदा मनुख, ते गिणती परमात्मा भी करदा है। परमात्मा भी गिणती करदा। जिथे मनुख गुरु सवारे संसार च आके माया की अपने पदार्थों की गिणती करदा है, जमा पूंजी जोड़ जोड़ के रखदा है, उथे परमात्मा भी फिर गिणती करदा। परमात्मा फिर साडे स्वासां की गिणती करदा है। कल्ले कल्ले स्वास की गिणती करदा। वाहिगुरू हिसाब किताब लाउंदा है कि अज इन्ने साल बख्शे सी, इनू इन्ने स्वास बख्शे सी, इन्ने रह गए, इन्ने रह गए। तो पल पल परमात्मा भी गिणती करदा। जदों फिर साह पूरे हो जाते हैं, उदों फिर परमात्मा अपना फरिश्ता भेजदा तो उस जीव नूं संसार तो लै जाता है। भाई चल तेरा सफ़र पूरा हो गया। दोनों की गिणती विच फर्क है। परमात्मा भी गिणती कर रहा तो मनुख भी गिणती कर रहा है। जिस दिन मनुख नूं इस गल की सोझी आ गई कि नहीं, मैं स्वासां नूं गिणना करा, दमड़े ना गिणा, स्वासां नूं गिणा, जिहड़े मैनूं साह आ रहे ना, इस साह दे राही, कल्ले कल्ले साह दे राही मैं वाहिगुरू वाहिगुरू आखना करा। कल्ले कल्ले साह दे राही मैं उस मालक दा जस करा, फिर मेरी स्वासा रूपी पूंजी सफल ही होवेगी। ते गुरु सवारियो, इस तरह जिहड़े गुरमुख जन हन, वो जिहड़ा संसार जन्म लैके आउंदे ने,
ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰੈ ਨ ਜੰਮੈ ਨਾਨਕ ਪਾਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਹੈ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਜੰਮੈ, ਨਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਜਮ ਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਹੀ ਮਨੈ ਸਮਾਏਂਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਏ, ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਪੀਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਸਥਾਨ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੀਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਫਕੀਰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਇਹ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਝ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਫਕੀਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਵਾਂਗਾ। ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਛਕਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਛਕਣਾ। ਛਕਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲਵੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਛਕਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋਗੇ।
गुरु नानक साहब महाराज ने बचन कीते। कहण लगे ये दुध सतगुरु कहण लगे धरती में टोआ पुट के इस दुध नूं रथे रखना करो, कहते यही दुध छकांगे, यही दुध खुआर नहीं होवेगा। हुण गुरु नानक पातशाह दे बचन सतगुरु कुछ भी कर सकते हैं। कहते ने उस दुध नूं रखिया गया, सांभिया गया, सतगुरु उत्थे चल पे चाले पाए ने। तो समा आया छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने नगर वसाया, बाबा गुरदित्ता जी पासों नगर वसाया, तो नगर का नाम फिर कीरतपुर साहब रखे आ। पीर बुढ़न शाह जी की लंबेरी उम्र हो गई। इत्थों तक इतिहासकार लिखते हैं कि जिहड़े नेत्रां दे भरवट्टे सी ना, नेत्रां दे भरवट्टे जिवें साडे केस ने जूड़ा साडा, इस तो बड़े बड़े कहते लंबे लंबे नेत्रां दे भरवट्टे हो गए सन, गोडियां तक पहुँचते सी। चौंकड़ा मार के बैठा, रब की इबादत खुदा की इजाजत च बैठा होया। तो उधरों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पहुँचे ने। तो सतगुरु कहन लगे पीर साईं जी तुहाडे कोल साडी अमानत पई हुई है, तुहाडे कोल अमानत पई है। जदों ये सुनिया कहन लगे वो अमानत यह है कि असी तुहाडे कोल साडा दुध पिया होया है, असी दुध छकना है। जो पीर साई ने अपने नेत्र खोले, भरवट्टे चुक के पिछां नूं कीते, ते सामने गुरु सवारियो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज मीरी पीरी दे मालक जिहड़े घोड़े उत्ते सवार हन, सतगुरु महाराज दर्शनदारे कीते, गदगद होए। कहन लगे गुरु नानक दी छेवीं जोत सतगुरु महाराज धन भाग मैनू आप जी दे दर्शन दीदारे होए ने। ते दुध गुरु सवारे कहते वो जो दुध कढ़िया तो दुध जिहड़ा सी पहले जामे च सतगुण रखाया सी, ते छेवें जामे तक वो दुध कच्चा ही रहा सी, खुआर नहीं होया सी। फिर गुरु सवारे अगों इन्हें बचन कीते, कहन लगे बुढ़न शाह जी कहन लगे कि मैं गुरु नानक साहब महाराज दे रूप विच, मैनू गुरु नानक दे रूप विच दर्शन दीदारे देना करो। आप जी गुरु नानक की छेवीं जोत हो, जोत दे मालक छेवें वारस हो, पर मेरा मन करता है कि मैं उही स्वरूप देखना करा जिहड़ा स्वरूप पहले जामे च आप जी दे देखना की दर्शन कीते सन। ते सतगुरु कहन लगे चल असी तुहाड़ी साडे तां तुसीं दर्शनदारे कर ले। ये साडा साहिबजादा जिहदा नाम है बाबा गुरदित्ता, जिन्हूं टिक्का आख्या जांदा सी। कहन लगे बाबा गुरदित्ता जी नूं आखना कीता कि नदी में जाके इशनान करके आवो। बाबा गुरदित्ता जी इशनान करके आए, सतलुज दरिया वगदा। जो वापस आए ने ऐसी कला वरती है, क्योंकि बाबा गुरदित्ता जी का पहला भी जिहड़ा चेहरा सी गुरु नानक पातशाह नाल बिल्कुल हूबहू मिलदा सी, नैन नक्श। जो इशनान करके वापस आए, बाबा बुढ़न शाह जी के सामने खलोते, तो बाबा बुढ़न शाह जी नूं बाबा गुरदित्ता दे विचों गुरु नानक साहब महाराज दे दर्शन दीदारे हो रहे हैं। तो सतगुरु कहन लगे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बचन कीते, कहन लगे पहला तुहानूं टिक्का आख्या जांदा, गुरदित्ता आख्या जांदा सी, अज तो बाद तुहाडे नाम नाल एक होर शब्द जुड़ेगा। दुनिया दे लोग तुहानूं बाबा आख्या करनगे, ते तुहानूं बाबा गुरदित्ता जी दे नाम नाल जाणिया जावेगा। ते गुरु सारे बाबा गुरदित्ता जी ने दुध छकिया सी। अज जदों आपां कीरतपुर साहिब की धरती ते जांदे आ, ते कीरतपुर साहिब की धरती ते ये आम ये धारणा बनी हुई है कि धन धन बाबा गुरदित्ता, दीन दुनी दा टिक्का, जो बार मंगिया सो बार दिता। जो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बचन कीते वो सत होए। सो गुरु सवारे गुरमुखां दा जीवन इहो जिहा हुंदा है। तो वो ना फिर बाबा बुढ़न शाह जी जिन्हां दी उम्र बड़ी हो गई है, हथ जोड़े गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे अगे कि पातशाह कृपा करो, हुण बड़ी लंबेरी उम्र हो गई है। जो जिंदगी की मेरी मंजिल सी, जिस मंजिल तक मैं पहुँचना चाहता सी, मैनूं प्राप्त हो गई। पहले जामे च आप जी आए,
मैं उਡੀਕ कर रहा सी कि 6वें जामे तक मेरा जीवन जिहड़ा ये सही रह जावे। तो सतगुरु हुण आप जी ने दर्शन दीदारे बख्शिश कीते ने, आप जी दे मैनूं दीदार होए ने, ते किरपा करो पातशाह हुण इस चोली नूं मैं त्यागना चाहुंदा हां। इतिहासकार लिखते ने कि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बाबा बुढ़न शाह जी नूं अपना जिहड़ा सज्जा चरण उहदे सरीर नाल लाणा कीता, साईं जी ने सतगुर दे चरणों च मत्था टेकिया ते गुरु सवारियो उस समय अपने पंच भूतक शरीर नूं त्याग दिता सी। यह है गुरमुखां दा जीवन, जिहड़े उस मालक दा हर समय जस करते हैं, फिर वो मरै ना जमै ना दुख पाए, ना वो जमते हैं ना फिर गुरु सिर बार बार मरते हैं, जमन मरण तो रहत हो जाते हैं, ना दुख पाए ना ही किसी प्रकार दुख उन्हां नूं प्राप्त होंदा है। मन ही मन है समाएंदा, मन करके गुरु सवारियो उस परमेश्वर विच वो समा जाते हैं, अभेद हो जाते हैं। से बड़ भागी जिन्नी सतगुर पाया, कहते बड़ भागी कौन ने? तो पातशाह कहते वो बड़ भागी हन जिन्हां ने सतगुर नूं प्राप्त कर लिया। होमै विच हो मोह चुकाया, तो जिन्हां सतगुर की प्राप्ति किन्हां नूं हुंदी है? जिन्हां ने अपने अंदरों कहते होमै खत्म कर ली, तो अपने अंदरों मोह इत्यादक नूं मुका लिया, खत्म कर लिया। जिन्हां दे अंदर मोह मुक गया, होमै मुक गई, अपने गुणां दा जिहदे अंदर जीव दे अंदर मान हो जाता है। आम तौर पर मनुख दे अंदर जिथे जे चार दमड़े आ जाण तो मनुख मान कर लगे मेरे को बड़ी माया है, पर गुरबाणी कहते माया धारिया अन्ना बोला पातशाह ने वचन कर दिते ने। तो सतगुरु कहते ये होमै मैं हाँ, इस मैं नूं तां मकाना है, जिहदे अंदरों कहते ये मोह मुक गया, जिन्हें मोह अपने मोह अंदरों होमै नूं खत्म कर दिता, मोह मुका लिया। कहते फिर असल विच कहते उन्होंने फिर सतगुर की प्राप्ति हुंदी है, वो बड़ भागी बन जाते हैं। मन निर्मल फिर मैल ना लागै, दर सच्चै शोभा पाएंदा। फिर जिन्हां दे अंदरों होमै मुक गई, पदार्थां दा मोह दियां तंदां खत्म हो गईयां, तो सतगुरु कहते फिर वो मन करके निर्मल हो जाते हैं। फिर वो निर्मल नहीं मन करके, फिर उन्हां गुरमुखां नूं कहते किसी प्रकार की मैल नहीं लगती है, तन की मैल नहीं मन की मैल की गल है। इत्थे मन कर कदे वो मैल ही नहीं होंदे हन। तो इस तरह वो गुरमुखां नूं फिर मैल नहीं लगदा, दर सच्चा शोभा पाएंदा। वो गुरमुख जन सच्चे मालक की दरगाह विच शोभा वडियाई प्राप्त करते हैं। आपे करे कराए आपे, आपे वेखै थाप उथापे। सतगुरु महाराज अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते गुरमुख जन इस गल की सोझी आ जाती, ज्ञान हो जाता है कि जो कुछ संसार विच हो रहा, जो पिछे होया हुण हो रहा तो अगे होवेगा, कहते ये जीवां दे वस दी गल नहीं है, तो परमात्मा आप ही करवा रहा। जिमें जिमें उस मालक का हुक्म हुंदा है, अपने हुक्म दे विच ही जीवां पासों परमात्मा कारक करा रहा है। आपे वेखै थाप उथापे, आप ही संसार नूं वेख रहा ते जीवां नूं पैदा करदा, फिर उथापे थापे उथापे तो बाद फिर उन्हां दी लैता करदा है, जन्म दिंदा, पालना पोषणा करदा, ते पालना पोषणा करन तो बाद फिर संघार भी आप ही करदा है। उहदे हुक्म विच ही जमदे ने, उहदे हुक्म दे विच ही मरदे हन। ये परमात्मा दी खेड है। गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भावै, सच सुन लेखै पाएंदा। जिहड़े गुरमुख जन हन, गुरमुख जनां दी जिहड़ी सेवा कीती हुई टहल सेवा है, जिनी कमाई कीती हुंदी है उन्हां गुरमुखां ने अपने जीवन विच, ते सतगुरु कहंदे मेरे प्रभ भावै,
मेरे प्रभु परमात्मा नूं उन्हां दी कीती हुई टहल सिया भाव चंगी लगदी है। वो प्रवान हो जाते गुरमुख जन, क्योंकि सच सुन लेखा पाएगा। वो सच नूं सुनते ने, सच उत्ते पहरा दिंदे हन, ते इस तरह उन्हां दे उत्ते बख्शिश करके जिथे संसार दे जीवन लेखे जोखे च परमात्मा ने पाया होया है, इस तरह गुरमुख जन नूं पाउंदे ने। ते गुरमुख जनां पासों फिर वो कार कराउंदे हन जिहड़ी कार करके मनुख दा जीवन सफला हुंदा है, जो लाहा खटते ने गुरमुख जन। तो इस तरह गुरु से उस मालक के गुण गा के उस मालक विच भेद हुंदे हन। गुरमुख सच्चो सच कमावै, गुरमुख निर्मल मैल न लावै। गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, जिहड़े गुरमुख जन हैं कहते वो सच के उपासक हैं, सच की कमाई करते हैं, कदे भी सच तो उल्ट कर्म नहीं करते। तो इस तरह ये कमाई करके सच विच ही कहते समा जाते, यही उन्हां दी कमाई यही है, यही खट्टी है। तो गुरु पातशाह महाराज बख्शिश करते हैं, कहते गुरमुख सच्चो सच कमावै। जिहड़े गुरमुख जन हैं वो सच की कमाई, सच की कमाई की है कि ये नहीं कि एक पासे आपां मुखों वाहिगुरू वाहिगुरू आखी जाइए, दूजे पासे असीं धर्म तो उल्ट वो कर्म करते रहिए जिहड़े कर्म करन नूं साडा गुरु साडा इष्ट सानूं इजाजत नहीं दिंदा है। कि फिर आपां उन्हां नूं गुरमुख आखांगे? हुण ये जिहड़े कर्म सी तां सज्जण ठग भी करदा सी, मलक भागो भी करदा सी, कि वो गुरमुख सी? नहीं गुरु सवारियो, असल विच गुरमुख वो जे मुखों आपां वाहिगुरू वाहिगुरू आखदे आ, बाणी पढ़दे आ, सिमरन करदे आ, ते नाल सानूं सच दा साथ भी देना चाहिदा है। वो कर्म नहीं करने चाहिए जिहड़े कर्म करन नूं साडा धर्म साडा गुरु सानूं इजाजत नहीं दे रहा। आपां गुरु दे भै विच रह के अपने जीवन नूं बतीत करना है। ते सतगुरु महाराज कहंदे ने इस तरह फिर गुरमुख जन कहते ये कार कमाते हैं, सच के उपासक बन के सच उत्ते पहरा दिंदे ने, यही कमाई करते हैं। गुरमुख निर्मल मैल ना लावै, ते गुरमुख जन कहते निर्मल सुभाव वाले हो जाते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। उन्हां दे अंदर कहते फिर इहो जी अवस्था हुंदी है, उन्होंने विकारां दी मैल कदे भी अपने मन नूं वो लाउंदे नहीं हन। नानक नाम रते विचारी, नामे नाम समाएंदा। नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं, कहते भाई इस तरह वो गुरमुख जन परमेश्वर का नाम जपते हैं, नाम विच रते तदाकार हुंदे हन, ते हर समय उस मालक दी प्रभु दे गुणां दी विचार करते हैं, ते नाम जप के नामी परमेश्वर विच ही वो समा जाते ने, उहदे विच ही अभेद हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने साडे